को देखा, उस समय कालेब और जोशुआ ने परमेश्वर को देखा। The next difference I see in the Word of God is this. और दूसरा फर्क और अंतर मैं ये देखता हूँ, Some spoke obstacle, others spoke opportunity. Praise the Lord. कुछ लोग अड़चन की बात करते हैं और कुछ लोग अवसर की बात करते हैं। Joshua and Caleb said, we have an opportunity here to take this land. Now is the moment. Now is the time. Now is the hour. कालेब और जोशुआ ने ये कहा, ये अवसर है, ये मौका है, यही समय है, आइए इस अवसर का लाभ उठाएं। Caleb said in the Word of God, it is our opportunity. Hallelujah. कालेब ने परमेश्वर के वचन में यही कहा, ये हमारे लिए एक अवसर है। He said, yes, they are giants, but at this moment, God has made them defenseless. Praise और God. देखिए, वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो बड़े दैत्याकार होंगे, लेकिन ये अवश्य है कि परमेश्वर हमारे साथ। He said, this is our window of opportunity. Praise God. और वो ये कहता है कि ये अवसर हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के लिए काम करें। This is the divine moment of God for our hour. और ये हमारे लिए वो दैवीय समय होगा, हम परमेश्वर के लिए क्रियाशील हो जाएं। Yesterday would have been too early and tomorrow will be too late. Now is our hour. कल जो Hallelujah. बीत गया, ये बहुत जल्दबाजी होती, या कल जो आने वाला है, उसमें बहुत देर हो जाएगी। The Bible said that Caleb said they were defenseless. They were without defense, meaning this is our opportunity. और Hallelujah. कालेब ने उन्हें समझाया, यही वो अवसर है जब हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। Caleb was a spiritual giant. He saw an opportunity. और Hallelujah. चूंकि कालेब एक आत्मिक योद्धा था, इसलिए उसने अवसर को देखा And he spoke of the opportunity. Praise और God. उसने उस अवसर के बारे में वहां पर बोला। But the other spies, they spoke of the obstacle. लेकिन दूसरे भेदियों ने अवसर की जगह अड़चन की बातें करी। They said, yes, it is everything that God has said, but there's something standing in our way. और देखिए, उन्होंने यही कहा कि हाँ वो सब ठीक है जो परमेश्वर ने कहा, लेकिन कुछ अड़चन हमारे सामने है। There are giants in the land and they are bigger than we are, and we cannot withstand that. और उन्होंने कहा कि हाँ वे बड़े दैत्याकार लोग हैं और उनके सम्मुख हम खड़े भी नहीं हो सकते। This is the difference between people that accomplish great things for God and people that do not do anything for और God. यही फर्क है उन लोगों में जो परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करते हैं और उनमें जो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते। People that do great things for God are always speaking about the opportunity, not the obstacle. Praise और जो God. लोग परमेश्वर के लिए महान कामों को करना चाहते हैं, वे हरदम और सदैव अवसर की बात करते हैं, वे कभी अड़चन की बात नहीं करते। They believe what the Word of God said when it said, if God be for us, who can be against us? और इसीलिए Hallelujah. वो इस बात को वो जानते हैं, मन में यकीन है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। They believe what the Word of God says when it says, let every man be a liar, but let God and His Word be true. Hallelujah. Praise the Lord। और सभी बातों में परमेश्वर सच्चा और खरा है। If you're going to accomplish anything great for God in life, you're going to have to learn to speak the opportunity, not the obstacle. Praise God. यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, आप अवसर की बात करें, अड़चनों की बात न करें। If God said it can be done, then it can be done. Hallelujah. यदि परमेश्वर ये कहता है, हाँ ये होगा, ये मुमकिन है, तो अवश्य यही होगा। Jesus said this gospel shall be preached unto the ends of the earth. Hallelujah. यीशु मसीह ने कहा कि ये सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक फैलाया The जाएगा। last time I looked on a map, India was a part of the world. Hallelujah. और अंतिम बात जब मैंने मानचित्र को देखा, उस नक्शे में पाया कि भारत भी एक देश। So tonight there are no obstacles to the gospel reaching the villages of India. और इसलिए Hallelujah. आज की रात में कोई भी अड़चन भारत की गलियों में, शहरों में सुसमाचार को पहुंचाने के लिए कोई भी नहीं है। It is the opportunity. Hallelujah. और ये हमारे लिए एक अवसर है। We look at things differently and that can determine our destiny. और जब हम चीजों को भिन्न तरीके से देखते हैं, हमारा लक्ष्य वही निर्धारित होता है। I heard a story about a man many years ago from the United States. और एक कहानी मैंने कई साल पहले एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शख्स के विषय में सुनी। He was sent to a far Asian country for his company to work. और वो कंपनी के काम से किसी एशिया के देश में वो पहुंचा। His company made shoes and his job was to go to the Asian country and sell these shoes. और उसकी कंपनी जूतों का निर्माण करती थी और उसकी कंपनी चाहती कि उस देश में जाकर वो जूता बेचे। He had another man that went with him on the assignment. और उसके साथ में एक शख्स और था जो उसी काम को सौंपा गया, साथ में गया। When they got to the country, they began to survey the people and the need for shoes. और जब वहां पर उन्होंने गए तो उन्होंने इस प्रकार का ढूंढना शुरू किया कि कहां पर और किस प्रकार से जूतों की जरूरत वहां के लोगों में है। The one man that went with him sent a report back to the boss
boss and said, "We will never succeed here. No one wears shoes." और पहले शख्स ने ये रिपोर्ट अपने बॉस को भेजी कि यहाँ पर लोग जूते पहनते नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगे। He said, "These people don't wear shoes. No one wants shoes. We'll never be successful और here." उसने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि चूंकि यहाँ पर लोग जूते पहनते नहीं और इसलिए हम कभी भी उन्हें जूता पहना नहीं पाएंगे और हमारा यहाँ पर सफल होना मुश्किल है। The other man wrote a letter back to the boss. दूसरे शख्स ने भी एक चिट्ठी अपने बॉस को भेजी। He said, "This is a wonderful opportunity. No one wears shoes. We can sell everyone shoes." Hallelujah. और दूसरे शख्स ने ये चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर चूंकि कोई जूता पहनता नहीं, इसलिए ये बेहतरीन अवसर होगा हमारे जूतों को यहाँ बेचने का। There were two men in the same environment. देखिए दो शख्स एक ही समान एक ही काम में, Two men with the same challenge. दो व्यक्ति एक ही चुनौती का सामना करते हुए, Two men with the same tools. दो व्यक्ति एक ही औजार या हथियार। One spoke obstacle, the other spoke opportunity. पहले शख्स ने अड़चन की बातें करी, दूसरे ने अवसर की बातें करी। Joshua and Caleb said, "This is our opportunity." Hallelujah. और कालेब और जोशुआ ने कहा ये हमारे लिए एक अवसर है। There will always be obstacles in the work of God. याद रखें परमेश्वर के काम में सदैव अड़चन आती है। Jesus said, "In this world you shall have tribulation, you shall have trials and और trouble." देखिए यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम संसार में हो तुम्हें अड़चन और परेशानियां आएंगी, He said, "But be of good cheer, for I have overcome this world." लेकिन Hallelujah. तुम इस बात को तुम्हारा मन व्याकुल ना हो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। The same spirit that raised Christ Jesus from the dead is the same spirit that lives in us with overcoming power. और ये देखिए जिस आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से लोगों को जिलाया, वही आत्मा मेरे और आपके जीवन में व्यापक है। Don't see obstacles, see opportunity in Praise it. the Lord. Hallelujah. आप कभी भी आप अड़चनों को न देखें, आप अवसरों को भुनाने की फिराक में रहें। The next difference I see in the Word of God is this. और दूसरा तीसरा अंतर जो मैं ये इस परमेश्वर के वचन में देखता हूँ वो इस प्रकार। Part of the spies saw people. Part of the spies saw people, but Joshua and Caleb saw the promise of God. और देखिए लोगों ने जो दूसरे भेजे थे उन्होंने वहां पर भीड़ को देखा, मनुष्यों को देखा, लेकिन जोशुआ और कालेब ने परमेश्वर के वायदे को देखा। The Bible tells us exactly what God wanted the spies to do. और देखिए बाइबल ठीक वही बताती है जो उससे कहा गया था उन भेदियों से करने के लिए। God said, "I show you a land." परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक देश दिखाऊंगा He said, "It's a land that I want you to live in." और ये देश वो है जहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम निवास करो, रहो। He said, "It's a land that is filled with milk and honey." और उसने ये कहा कि वो ऐसा देश है जहाँ पर दूध और मधु धाराएं He बहती said, "It is a land that I will do a great work in." हैं। और ये वो देश है जहाँ पर मैं महान कामों को करूंगा। He said, "Look at the land as far as you can see it belongs to और उन्होंने ये you." कहा कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जाए तुम इस देश को देख लो। He said, "I will drive the inhabitants out of the land, and the land will belong to you." और देखिए वहाँ पर परमेश्वर ने ये कहा कि मैं यहाँ के निवासियों को यहाँ से भगा दूंगा, हटा दूंगा और ये देश तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए रहेगा। Moses sends the spies and says, "Look at the land and see which way we should go and take the और land." मूसा ने अपने भेदियों को इसलिए भेजा कि हम उस देश में कहाँ से प्रवेश करें। The Bible says that the spies come back with these words. और बाइबल ये बताती है कि जो भेदिए थे वे इन शब्दों के साथ वापस आए। They said, "The problem is not with the land, the problem is with the people. They are giants and they will और defeat." देखिए वहाँ पर अड़चनों का जो बखान उन्होंने किया वो ये नहीं कि वहाँ पर देश कैसा है, लेकिन वहाँ के लोगों के विषय में उन्होंने अड़चन को पेश किया। But nowhere in the Word of God did it say, "Look at the people." It said, "Look at the promise, look at the land." और Hallelujah. देखिए बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जाओ तुम वहाँ के लोगों को ताको और उन्हें देखो। वहाँ पर ये लिखा है तुम परमेश्वर के वायदों को ध्यान रखो। Our problem is when we get our eyes off of the promise and we get our eyes on people. Hallelujah, they discourage देखिए us. समस्या इस बात की है कि हम अपनी आंखों को लोगों पर लगाते हैं, लेकिन हमें लगानी परमेश्वर के वायदे और वचन पर चाहिए। Then what we see in people become our obstacle and we fear and we can't move forward. और जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो लोग हमें अड़चन दिखाते और पैदा करते हैं। Joshua and Caleb said, "We don't care about the people. God said it's Praise the our Lord. land. We want our land." Hallelujah. और कालेब और जोशुआ ने कहा हमें इस बात की परवाह नहीं कि लोग वहाँ कैसे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उन वायदों पर भरोसा रखेंगे। If you are
successful for God, you